ناقابل فراموش کہانیاں، کرداروں کے ذریعے انسانی نفسیات کی بھرپور عکاسی اور زندگی سے جڑے موضوعات کو خوبصورتی سے پیش کرنے کا نام ڈرامہ ہے۔ کتے ککی کے پیچھے پڑ جائے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ موت کیوں نہیں مانگ لیتی اس آدمی کی؟ تم شادی کسی اور سے کر رہی ہو؟ پتہ نہیں پہلے منکر تھا یا اب منکر ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے نامور ڈرامہ نگار ڈرامے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ آداب۔ آپ سے میں آج جہاں سے مخاطب ہوں وہاں پر ایک محفل سجی ہے۔ کچھ ایسے اسباب، کچھ ایسے لوگ احباب میرے ساتھ ہیں، کچھ دوست ایسے میرے ساتھ ہیں جن کا تعلق لکھنے سے ہے، اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں وہ اسکرین پر ڈرامے کی صورت آپ دیکھتے ہیں، اور وہ ڈرامہ جس پر بہت امیدیں بھی وابستہ ہیں، بہت تنقید بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ بلکہ یہ کیمرہ کھلنے سے بہت پہلے سے ہم یہ بات کرتے ہیں، اور اکثر ایسی نشستیں ہمارے ہاں رہتی ہیں جہاں ہم سب دل جلے بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ کیسا لکھا جا رہا ہے، کیوں لکھا جا رہا ہے، پہلے کیا لکھا جاتا تھا۔ آج یہ سب باتیں ہم آپ کے ساتھ مل کر کریں گے۔ ایک ایک کر کے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتی چلوں گی۔ اس طرف جو صاحب تشریف رکھتے ہیں، خالد احمد صاحب، ان لوگوں کو چند ہمارے دوست ایسے ہیں جن کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ اسکرین پر بھی نظر آتے ہیں، اس لیے آپ انہیں پہچانتے ہیں۔ ان کے پہچان کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ اداکار ہیں، صداکار ہیں، تھیٹر سے ان کا تعلق ہے، اور بہت کم لوگ شاید یہ جانتے ہیں کہ مترجم ہیں، بہت خوبصورت ترجمہ کرتے ہیں، اور شیکسپیئر کے کام کا بہت عمدہ ترجمہ جو ہے وہ خالد صاحب نے کیا ہے، اور یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بھی گپ شپ جاری تھی جس میں ہم نے آپ کو شامل کیا۔ اس طرف جو صاحب تشریف رکھتے ہیں بہت خوبصورت ہیں اور خوبصورت تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سنا ہے کہ ان کو ایکٹنگ کی پیشکش کر دی گئی ہے۔ فصیح باری خان کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ فصیح کے کام میں بہت اوریجنلٹی ہے، کہیں دور دور تک کسی انسپریشن کا سرا میرے ہاتھ نہیں لگتا کہ شاید وہ دیکھ کر فصیح نے یہ کیریکٹر تراشا ہو۔ بہت جینوئن، بہت اوریجنل چیز لکھتے ہیں، بہت ہٹ کے، اور جب بھی وہ چیز پردے پہ نظر آتی ہے، کریڈٹ تک پہنچنے سے پہلے آپ جان جاتے ہیں کہ فصیح نے اس کو لکھا ہوگا۔ فصیح سے کہ جس برابر بیٹھی ہیں ان کو بھی کون نہیں جانتا، اور جو بھی مطلب ان کی کوئی ایک پہچان تو ہے نہیں، جتنے کردار انہوں نے نبھائے ہیں۔ بہت حیرت کی بات یہ ہے کہ حنا سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے، تعجب مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ سب کردار کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جو بردبا ایک گریسفل شخصیت، ایک بہت میچور، بڑی سنجیدہ گفتگو کرنے والی، بڑی گہری بات کرتی ہیں، شاید وہی سب ہے جس کی وجہ سے وہ کردار ان کے اندر سے پھوٹتے ہیں اور پھر کہیں غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کو بالکل نہیں لگتا کہ یہ وہ کردار ادا کرنے والی اداکارہ ہیں۔ ان میں بھی ایک یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ ان کے اور برابر میں خواجہ صاحب، خواجہ نوید ایڈوکیٹ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ہم رائٹرز کو کچھ لیگل ایڈوائس کی بہت ضرورت ہے اور گاہے گاہے رہتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، کون نام سے واقف نہیں ہے، ہمارے لیے، ہم جیسے لکھنے والوں کے لیے ان کی اسکرپٹ ایک درسگاہ سے کم نہیں ہے، اور میں جس بات سے بہت متاثر ہوتی ہوں ان کا ذہن ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، اور سوچنے پر اکساتا ہے۔ مجھ سے جتنے ٹیڑھے کام انہوں نے کرائے ہیں، وہ کام جن کا مجھے گمان نہیں گزرتا، وہ کام جن کی مجھے ہمت نہیں پڑتی، یا وہ کام جو میں نے سوچے بھی نہیں ہوتے، اس میں یہ مجھے پکڑ لیتی ہیں اور کروا کر چھوڑتی ہیں۔ آج جو انہوں نے مجھے یہاں بٹھایا، یہ بھی سب ان کا قصور ہے۔ نور آپا کے برابر احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان کو بھی وہ ایڈوانٹیج بہت بھرپور حاصل ہے کہ ان کو سب پہچانتے بھی ہیں، ان کو سب سنتے بھی ہیں، یہ دکھائی بھی دیتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، اور بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ احمد صاحب کا دل بہت گداز ہے۔ میں آپ کو جو تعارف کرا رہی ہوں یہ شاید ان کی سب کی پروفیشنل زندگیوں سے ہٹ کر جو میرا ان سے ایک دوستی کا انسانی ایک ناطہ ہے وہ کروا رہی ہوں۔ بہت گداز دل ہے، بہت جلدی ٹوٹتا ہے،
उतनी ही तेजी से जुड़ता है, फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है अब के टूटा है तो फिर नहीं जुड़ेगा, फिर जुड़ जाता है। और इनके पास एक वालहाना इजहार का जो खसूसियत है, बिला तामुल बिला झिझक हर चीज को एक्सप्रेस करते हैं, उसका ये नुकसान भी उठाते हैं। ये भी हम इनसे पूछेंगे। उनसे जरा आगे बढ़े तो एक सकाफत तशरीफ रखती है, आपको इनके हुलिये से भी वो सकाफत नजर आ रही होगी, आप फौरन बता सकते हैं कि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। ज़फ़र मेराज साहब बहुत मकबूल हैं, खासतौर पर जो औरतें ड्रामा देखती हैं उनमें ये क्यों मकबूल हैं, ये बात भी जरा उनसे पूछिएगा। और बड़ी धीमे धीमे जैसे ये मुस्कुराते हैं वैसे ही धीरे से ये कुछ ऐसी चुभती हुई बात कह जाते हैं जो दिमाग में भी चुभती है और दिल पे जाके भी चुभती है और कई रोज चुभती है। कुछ और आगे बढ़े तो एक किसान बैठी हैं, इनका जमीन से बहुत रिश्ता है। ये बीज बोती हैं, उसका पेड़ बनता है, उस पेड़ पे परिंदे रहते हैं, उसके नीचे इंसान बैठते हैं और ये वहां बैठकर कहानियां लिखती हैं। इनका इस सैयारे से बहुत ताल्लुक है, इनको बहुत फिक्र होती है कि पानी कम हो गया, हवा आलूदा हो गई, मिजाज बदल गए, ये सब कुछ। और इनका कलम बहुत मुंहजोर है। मुझे जो हमेशा आमिना मुफ्ती साहिबा के कलम से मैं कुछ घबरा कर एक तरफ हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि वो जो एक रेला, वो जो एक जोर है, वो बहुत कुछ बहा के ले जाता है, बहुत ताकत इनके कलम में है। हम सब अक्सर बैठते हैं, बातें करते हैं, ऐसी ही गपशप, ऐसे ही ड्राइंग रूम्स में चाय हम साथ साथ पियेंगे, कॉफ़ी पीते हैं, गपशप करते हैं। आज आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हैं। बात को अगर बढ़ाया जाए, जो हम सब के लोगों के यहाँ दिल जले हुए हैं, और अगर खालिद साहब से इब्तिदा की जाए, कहा यह जाता है कि हमारा ड्रामा खराब हो गया, वो मयार नहीं रहा, बस बिगड़ गया, वो ड्रामा जो हुआ करता था अब तो वो ड्रामा ही नहीं है, और हाय ड्रामे को ये हो गया और हाय ड्रामे को वो हो गया, ऐसे तो हम कभी थे ही नहीं, ना हम वो देखने वाले रहे, ना वो चलाने और लिखने वाले रहे। खालिद साहब, क्या हकीकत है इसमें, या बस ये एक रविश है, एक ट्रेंड है कि जब चार लोग बैठेंगे तो कहेंगे भाई तौबा तौबा, बहुत बुरा ड्रामा है, बस मजबूरी है, देख रहे हैं, चला रहे हैं? मैं भी अक्सर मेरे दिल में भी ये सवाल उठता है कि क्या ये हकीकत है या एक मफरूज़ा है जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के यकीन में बदल गया है। और इसलिए कि हर शख्स हर जगह कहता हुआ नजर आता है कि साहब हम तो नाला हैं, हम तो तंग हैं। जो अदाकार है वो भी कहता है क्या करें, ऐसी स्क्रिप्टें आती हैं, आपको हम आप बयान नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टर भी कहता है कि क्या करूं, मैं तो सर पीट लेता हूं जब देखता हूं स्क्रिप्टें, लेकिन क्या करना तो है। राइटर भी कहते हैं कि हम क्या करें, हमारा क्या कसूर, हमसे तो जो कहते हैं, तो हम जब अच्छी चीज लेके जाते हैं तो हमें भगा देते हैं, तो हमको तो कहते हैं, तो पेट तो हमें भी पालना है। तो अच्छा, ये तो ये लोग हैं, लेकिन जहां मुझे लगता है कि शायद ये बात सही है कि मेयार बिगड़ा है या गिरा है, कि आम लोगों में जब जाते हैं किसी बैंक में, वो काउंटर पर गए चेक निकलवाने के लिए, तो बहुत अच्छा खालिद साहब आजकल आ नहीं रहे, दिख नहीं रहे, तो मैं कहता हाँ, ये नहीं बताता हूँ, कोई बुलाता नहीं है, कहता हूँ कि हाँ आजकल जो है वो अजीब सी स्क्रिप्टें आती हैं, दिल नहीं चाहता तो नहीं करता हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ वाकई बात तो सही है आपकी, हम भी पहले देखते थे और फलाना था और ये था। और कोई दुकानदार, कोई सड़क पर, कोई ये वो, हर शख्स ये कहता हुआ नजर आता कि हाय 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 हाय। अच्छा, अब इस हाय हाय की सिचुएशन जो है वो क्यों है, और अगर हाय हाय है तो वो जारी क्यों है?
कोई तो खुश भी होगा इस सिचुएशन से जब ही तो जारी है ना. सभी लोग तो हाय हाय नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग शायद हाय हाय न भी कर रहे हो. अच्छा, जो लोग हाय हाय नहीं कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो साहिबाने इख्तिदार हैं, जो सूरत हाल को बदल सकते हैं. तो समझ में नहीं आती है बात. और वो फिर रेटिंग की बात करते हैं. अब रेटिंग क्या चीज़ है, क्या है? आज तक मैंने किसी अखबार में इसके बारे में कोई इंटेलिजेंट आर्टिकल नहीं पढ़ा कि ये बताएं कि ये क्या चीज़ होती है. मतलब ये इट्स सरप्राइजिंग कि इसके ऊपर कोई तहकीक नहीं नजर आती है, हमारे सामने नहीं आती है कि रेटिंग चीज क्या होती है. तो वो कहते हैं बस आवाम ऐसी ही है, आवाम यही चाहती है. अब इसमें भी बड़े हैं, दो नुक्ता नजर हैं किसी भी अदब में. टेलीविजन को ले लीजिए, किसी भी चीज में, कि क्या आप लोगों को वही देते हैं जो वो चाह रहे होते हैं, या आप उनका ज़ौक़ बनाने में मदद करते हैं. दूसरी चीज़ ये कि एक ख़ास किस्म की चीज़ है जिसको वो ये कहते हैं कि मकबूल होती है, मकबूल होती भी है शायद, लेकिन क्या कोई दूसरी चीज़ नहीं सोची जा सकती है? ये तमाम लोग अपने क्रिएटिविटी को अमल में लाकर कोई दूसरी चीज़ें ऐसी नहीं सोची जा सकती हैं जो कि अच्छी भी हों, मेयारी भी हों और पॉपुलर भी हों, और शायद पैसे भी उसी तरह से कमाने वाले कमाते रहें. ये बात अगर अहमद साहब से मैं पूछना चाहूंगी, अहमद साहब, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ऐसी चीज बनाई जाए जो कि मकबूल भी हो और अच्छी भी हो, यानी अच्छा कंटेंट जो कमर्शियल भी हो और अच्छा भी हो? क्या कोई पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है? बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मुझे यूँ लगता है कि पहले तो कोई तालीम नहीं होती थी इस बारे में, अब तो माशाल्लाह तालीम भी दी जा रही है. मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है ये सब कुछ. और जो बच्चे जिनके साथ मैंने काम किया है या मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैं थीसिस वगैरह आते रहते हैं मेरे पास, मैं जब उन्हें पढ़ता हूँ बहुत हैरान होता हूँ, क्योंकि वो इतने उम्दा लिखे हुए होते हैं. वो अफसाना निगारी नहीं है, वो प्रॉपर स्क्रीन प्ले होता है. और मेरे नज़दीकी दो बहुत मुतजाद चीज़ें हैं. स्क्रीन प्ले अलग चीज़ है, अफसाना निगारी बिल्कुल अलग चीज़ है. सही. जब ये बच्चे मेरे पास आते हैं और कोई बाप और बेटे का, ये कभी मैं रिलेशन देख रहा था कि किस तरह से उसने दोनों के रिलेशन को इस तरह से बयान किया है जो कम से कम अफसाना निगार नहीं सोच सकता, क्योंकि उसमें एक जिद्दत है. और मेरा ये ख्याल है कि जो आप कह रही हैं कि पॉसिबिलिटी तो खैर बहुत ज़्यादा है. जो खान साहब कहते हैं कि ये हालात हाय हाय जो मची है, मुझे लगता है ये हाय हाय जो है ये सबसे पहले बर्पा हुई थी मार्केटिंग के लोगों में. एडवर्टाइजिंग जो का सिलसिला है, उन्होंने कहा कि हम हिलेंगे नहीं, हम मेहनत किए बगैर जो चीज बिक जाती है हम वो बेचेंगे. तो जैसे आगाज अखबार हुआ करता था, नई रोशनी अखबार हुआ करता था, बस के अंदर एक आदमी चढ़ता था और वो पूरा ढेर अपना बेच के चले जाया करता था. तो इन्होंने एग्जैक्टली उसी फॉर्मूले के ऊपर ड्रामे बनाने शुरू किए जिसमें सेंसेशन है, जिसमें एक छनाका हो, लोग चौंक के उसकी तरफ देखेंगे, वो तो बिकेगा. तो जब पहली दफा औरत ने पिटना और चीखना शुरू किया, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बिक गया. देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन है अहमद साहब. वो बात मैं चाहूंगी कि नूरा पा भी कंटिन्यू करें. आपने जो बात कही कि एडवर्टाइजिंग के जो लोग हैं उनका, क्योंकि उन्हें अपनी चीज़ बेचनी है तो वो बीच में ड्रामा भी चला देते हैं इश्तिहार के बीच बीच में. लेकिन जो इश्तिहारों में नज़र आने वाली औरत है वो तो बड़ी एम्पावर्ड है, वो सेंटर है एक फैमिली का, सब फोकस उसके पास है, ताकत उसके पास है, और जिस चीज़ को वो स्पॉन्सर करते हैं वो एक ओप्रेस्ड, एक पिसी हुई औरत है. यानी एक हमें नज़र आती है लॉन के जोड़े में बड़ी एम्पावर्ड, इंडिपेंडेंट, बोल्ड औरत, उसी का वही इश्तिहार जैसे ही रुकता है एक पिटती हुई औरत, एक आहुजारी हमें दिखाई. तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, या तो मेरा ख्याल है वो ये समझते हैं कि अगर आप फलां मसाले में बिरयानी पकाएंगी तो सारा ससुराल गर्विदा हो जाएगा, वो शायद अपनी एम्पावर्ड औरत बेच रहे हैं. क्या ऐसा है नूरापा, आपका भी ताल्लुक बहुत सी ऐसे साहिब इक़्तिदार में रहा कि जी आपने कंटेंट को जनरेट किया और बनाया और खड़ा किया, आपको ये लगता है कि हाय हाय पैदा की गई है और वो
کیونکہ کچھ بیچنا ہے, ایڈورٹائز کرنا ہے, ہم سبسروینٹ ہیں, ہمیں سننی ہے ان کی ڈکٹیشن, ان کے حساب سے چیز بنتی ہے. ایکچولی کیا ہے کہ یہ سب کا خیال اب ہو گیا ہے کہ یہی کامیابی کا فارمولہ ہے. اب بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں, اب بات یہ ہے کہ مارکیٹنگ میں, سیلز میں ینگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فوکسڈ ہیں اس چیز پر کہ اس کو بیچنا ہے, اور ظاہر ہے کہ چینل کو بھی فائدہ دینا ہے. اب وہ بک چکی ہے, شروع میں چیزیں بکی ہیں اور فائدہ ہوا ہے. اب اس فارمولے پر ویور کو بھی روک لیا گیا ہے اور ڈرامہ بھی اسی پر ٹھہر گیا ہے. ہم کبھی مختلف چیزیں بناتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں بنتی ہیں, مگر بات وہی ہے کہ دکان پر, ساری دکانوں پر ایک ہی چیز رکھی ہوئی ہے. اچھا ہوا کیا ہے اب کہ کیونکہ سارے دکانوں پر پورے بازار میں ایک ہی مال, اب ایک جیسا مال رکھا ہوا ہے نا, تو مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں گر گئی ہے. کرائسس تو ایک آ گیا ہے. ہاں, لیکن ڈیمانڈ تو پھر اس کا مطلب ہے اس مال کی ہے. اب ڈیمانڈ نہیں ہے, اب رواج ہے, اب رواج, اب ٹرینڈ ہے. اب ڈیمانڈ کہیں سے نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ڈیمانڈ کرنے والا جو ہے اس کو تو شام کو ٹی وی چلانا ہے, پورا دن چلانا ہے. مطلب ایک فرد ہے جو مستقل گھر میں بول رہا ہے اور عورت گھر کا کام کر رہی ہے. اب یہ چیز نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اسی مارکیٹنگ کو, اسی سیلز کو, انہی کو باہر نکلنا پڑے گا. آپ دیکھیں نا, انڈیا نکل آیا ہے جی, انڈیا کی فلم کو آپ کو, فلم کو دیکھ لیں, وہ نکل آیا ہے. آپ دوسرے سیکٹر پر ویب سیریز ٹرکی کا ٹیلی ویژن دیکھ سب نکل آیا. اگر احمد کی بات میں تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا. احمد نے کہا کہ تھیسز آتے ہیں اور میں متفق ہوں, کیونکہ میں بھی ابھی پچھلے دنوں یونیورسٹی جا رہا تھا تو میں دیکھتا تھا جو لڑکیوں کے, خاص طور پہ میں گرلز یونیورسٹی میں گیا تو وہ میں دیکھتا تھا کہ وہ انہوں نے چیزیں, بعض اتنی ڈیپتھ والی چیزیں, اتنی اچھی چیزیں, لیکن مسئلہ یہ کہ جو چینلز پہ بیٹھے ہوئے نا لوگ, جو انہی کے ایج گروپ کے, وہ اس طرح نہیں سوچتے. مطلب جو چینلز نے جو ہائر کیا ہے وہ انہوں نے وہی جو ایک روایت چلی آ رہی ہے, گھسی پیٹی باتیں, گھسی پیٹی چیزیں, وہ اس کی ترویج کے لیے, یعنی ان کے کام کی سپیس باہر ہے کہ نہیں, رواج ہے. کلیدی بات جی کہ ڈیمانڈ نہیں ہے, رواج. اور ایک رواج جیسے بن جاتا ہے نا, ہم کتنے رواجوں کا بوجھ اپنے اوپر چلتا ہے ہمارا معاشرہ, وہ ایک رواج بن گیا. اور اس رواج کو توڑنے کی خواہش یا صلاحیت یا ہمت ان لوگوں میں نہیں ہے جو کہ صاحب اقتدار ہیں, جو کہ کر سکتے ہیں. ہمت نہیں ہے یا خواہش ایسی نہیں ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں, چند لوگ ہیں جن کا انٹلیکچوئل لیول ہائی ہے, جو سماج کو بدلنا چاہتے ہیں, جو اس رواج کو توڑنا چاہتے ہیں. اب وہاں بھی ابھی بہرحال رکاوٹیں آ رہی ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو توڑنا چاہتے ہیں تو ان کی باقی کی ٹیم شور مچا, دکان پر بیٹھے ہوئے باقی سیلز مین جو ہیں ہم جیسے, وہ شور مچا دیتے ہیں کہ نقصان ہوگا, نقصان ہوگا, نہ کریں نہ کریں. تو یہ چیزیں ہیں ابھی بھی چند لوگ ہیں, آٹے میں نمک کے برابر ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ان چند لوگوں کا ساتھ دیکھ کر ہمیں اس رواج کو بریک کرنا پڑے گا. ہے نا, آپ سے اگر یہ پوچھا جائے, کیونکہ اداکاری سے جب تعلق ہوتا ہے براہ راست دیکھنے والوں سے بہت ایک اپنا رشتہ بنتا ہے, اور کہیں باہر جب آپ نکلتے ہیں تو آپ تک پہنچتے ہیں, آپ سے بات کہتے ہیں. ہم تو لکھ کے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں, مگر آپ کی پکڑ بھی ہوتی ہے کہ کیسا کیا, بہت تعریف بھی ہوتی ہے, تو وہ آپ سے دل کی بات کہتے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ دیکھنے والوں یہ نہیں دیکھنا چاہتے, یا ان کو یہ شکایت ہے, یا وہ کچھ بدلاؤ چاہتے ہیں, یا اتنے کنڈیشنڈ ہو گئے ہیں جیسے نور آپا نے کہا کہ ایک رواج بن گیا ہے تو سب ایک بھیڑ چال ہے, آنکھیں بند کیے چلے جائیں؟
हमारे माशरे में देखने वालों में से मुझे ऐसा लगा कि 3 तरह के लोग हैं। वो जो कुछ करके दिखाते हैं, और वो जो उस तजर्बे से फायदा उठाते हैं, और फिर तीसरी जमात वो है जिनको कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, बस ये है तो ठीक है, इस किस्म के लोग हैं। लेकिन मुझे हमेशा एक सवाल, एक प्यास हमेशा लगी, महसूस हुई उन लोगों में कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत हैं उन पे कोई क्यों कलम नहीं उठाता। एक अगर किसी मौजू पे लिख दिया गया तो फिर दूसरे चैनल को भी वैसा ही चाहिए, वही मौजू चाहिए। राइटर्स, किसी भी राइटर को या किसी भी क्रिएटर को आप जबरदस्ती उससे ही नहीं कह सकते कि तुम लिखो, तुम्हें ये लिखना है। ये अपने अंदर की आवाज होती है। हर राइटर अपने अपने अंदर से एक सुन के और बाहर लिखता है। जिन तहरीरों में मुझे लगा कि आगाही ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है, वो तो अपना मकाम बनाती हैं तहरीरें, और जहां जिनमें मामलात होते हैं वो बस यूं ही आता है और यूं ही चले जाता है। उसमें सिर्फ ब्लो ड्रायर्स, नए कपड़े और नकली पलकें होती हैं। वो आता है ड्रामा और जाता है। लेकिन कहीं कहीं कोई जब ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए, जो जिससे हम रिलेट कर सके, क्योंकि देखने वाले सिमटे खड़े हैं अपनी जगह पे, क्योंकि दौर ऐसा है कि कम वक्त में बहुत ज्यादा आपको काम करना है, तो लोग इंतजार में हैं कि उनको वो मौजूआत छेड़े जाए ना। अगर आप किसी चीज के लिए, आप सोशल मीडिया को देख लीजिए, ड्रामा लगता है कि अभी बहुत पीछे है जो टीवी पर आ रहा है। जब सोशल मीडिया पे कोई बात करता है तो आज के लोगों की बात, आज कोई इंसान पूरी अवेयरनेस के साथ बात कर रहा है। शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन चैनल को एक चीज चाहिए जो बराबर वाले चैनल पे चल के रेटिंग ले रही है। एक सिंबल बना दिया, औरत के बारे में जुलूस और औरत के बारे में लिखे। मैं तो बहुत सारे ऐसे मर्दों को जानती हूँ जिनकी कहानियां लिखी जानी है, जो और कोई देख के, ड्रामे का मकसद ये हुआ करता था कि वो ड्रामा देख के अपने अंदर एक सवाल रह जाता था कि मैं कहां खड़ा हूं। आज ड्रामा देख के देखने वाले के अंदर तहरीक पैदा नहीं होती, सवाल नहीं वो छोड़ता। मुझे लगता है कि उसमें ये सवाल भी फिर उठता है कि इतनी जब मैस प्रोडक्शन हो रही है, इस कदर ड्रामे बन रहे हैं, और जो पीटीवी के दौर में या पिछले वक्तों में जो ड्रामे अच्छे बनते थे वो भी इक्का दुक्का बनते ही कम थे। तो अब अगर तमाम सैटेलाइट चैनल्स के ड्रामे उठा लिए जाएं तो इक्का दुक्का अच्छे तो अब भी बनते ही हैं। तो मैस प्रोडक्शन में इस क्रिएटिविटी की क्या गुंजाइश है या नहीं है? अब एक बात मैं आमना की तरफ अगर चलूं और आमना आपसे ये पूछूं कि ये जो पीटीवी का तस्करा है, उस गोल्डन एरा की बहुत बात होती है, वो वक्त जो बीत गया और वो ड्रामे जिनको हम देख देख के भी बड़े हुए, महज एक नॉस्टैल्जिया है या वाकई उसमें कुछ सच्चाई है? क्या है ये? अभी कैमरे ऑन होने से पहले इस पे हम खासी गुफ्तगू कर चुके हैं, और मैंने खास तौर पे कहा था कि ये सवाल नहीं करना। इसीलिए अच्छा, मामला ये है कि बिल्कुल, मामला ये है कि हमसे पिछली जनरेशन जिन्होंने पीटीवी के दौर में उनके साथ लिखा, रेडियो से भी आए थे, कुछ इंडिजीनियस टेलीविजन के लिए कुछ लोगों ने लिखा, उनके पीछे स्टेट थी, यानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसके लामहदूद वसाइल थे और उसके पीछे एक नजरिया था। पाकिस्तान आजाद हुए हुए कुछ अरसा गुजरा था और वो बनाना चाहते थे एक कौम जो एक खुले जहन की पढ़ी लिखी कौम हो। अगर बीबीसी के, जाहिर है जिन्होंने पढ़े हैं, उसके जो उनके बेसिक मकासद थे वो थे कि 75% इनफैक्ट वो एजुकेशन होगा, यानी एंटरटेनमेंट भी होगी तो वो एजुटेनमेंट होगी, एंटरटेनमेंट होगी, खाली एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, उस दौर के अदीब बहुत खुशनसीब थे कि रियासत एक समझदार माँ की तरह उनकी बैक पे खड़ी थी। जो आइडिया वो लेके आते थे, उनके साथ पढ़े लिखे डायरेक्टर थे, और ड्रामा हमेशा राइटर का होता था।
डायरेक्टर्स का नाम हमने नहीं सुना था उस दौर में, वो तो हमें अब पता चला कि उनके पीछे वो डायरेक्टर्स भी थे, इतने बड़े बड़े नाम। वो राइटर बड़े खुश नसीब थे। ड्रामा अशफाक अहमद का होता था, ड्रामा बानो कुदसिया का होता था, ड्रामा डॉक्टर डेनिस आइजक का होता था। मैंने नहीं सुना था कि ये इसका है या उसका है, डायरेक्टर्स बाद में सामने आए। वो सब कुछ हमारी जनरेशन को नहीं मिला, क्योंकि सन 1999 में पीटीवी ने अपनी प्रोडक्शंस बंद कर दी। उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, आई स्टार्टेड राइटिंग आफ्टर 10 years। जब ये प्रोडक्शंस बंद हो गई, मैं उस वक्त रेडियो में अपनी इंटर्नशिप कर रही थी, तो तब मुझे पता चला कि अब पीटीवी अपनी चीजें प्रोड्यूस नहीं करेगा। मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन मैं ये लिखूंगी, आऊंगी। जब मैं उस दौर में आई तो मेरा आइडिया लेने के लिए रियासत नहीं खड़ी हुई थी, जिसके पास एक नजरिया था। मेरे साथ वो लोग नहीं खड़े थे जिनके घर का चूल्हा बहर सूरज चलता रहता था, क्योंकि उनको तनख्वाह देने वाली रियासत थी। अब मेरे पास वो सेठ था जिसने अपना भी पेट पालना, जिसने फिजिबिलिटी देखनी है, और उसके साथ बहुत सारे और उसके एम्प्लॉयज हैं जिनकी उसने फिजिबिलिटी देखनी है, जिसके उसने घर का चूल्हा जलाना है और उसके खानदान को पालना है। अब आ गई कहानी, तो कहानी अब इंटेलेक्ट से, सोच से, नजरिए से हटके कहाँ आ गई, वो आ गई मार्केट में। जब कहानी मार्केट में आ जाती है तो मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाह रही, आप खुद समझ लीजिए कि कहानी कहाँ आ गई। नहीं, बोल दे कहानी कहाँ आ गई। अब हमसे किस चीज का शिकवा है, कहानी को यहाँ लेके कौन आया, रियासत ने क्यों बंद कर दिया। मैं क्यों कहूं उन लोगों से कि आप अपना नुकसान कीजिए, आप वो माल मंडी में लेके आइए जो, क्योंकि अब एक मार्केट है। लेकिन फसी, मैं, नूरापा, जफर भाई, अहमद भाई, सब लोग, आप भी, हम खुश नसीब हैं। मैंने तो यहाँ पे भी, मेरे तो माँ जैसी ही, रियासत जैसे ही है मेरे साथ, जिन्होंने मेरे स्क्रिप्ट बाय किए। मैंने तो अपनी मर्जी का लिखा। अगर कहीं पे किसी जगह परेशानी हुई तो मैंने इतना वावेला मचाया कि या तो मैंने बीच में छोड़ दिया, या मैंने उन चीजों पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जिस तरह लोगों ने किया। तो हम टोटली ये भी नहीं कह सकते। अब फसी का जो ड्रामा है, क्या इस तरह का एक भी ड्रामा 1999 से पहले कभी लिखा गया था या बना था? और नूरापा के माशाल्लाह उस दौर में भी बड़े अच्छे थे, जो जफर साहब ने लिखे, जो अहमद भाई ने लिखे, आपने लिखे। मैं तो अपने ड्रामों को भी कहती हूँ कि मैंने जो जहेज जैसे कि आपने किया था, या उल्लू बराए फरोख्त नहीं जो था, या और भी मेरे ड्रामे, मुझे तो पीटीवी के दौर में हम तो बड़े प्रेशर में लिख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं वैसे ड्रामे नजर आते, तो मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। देखें, अभी आमना ने बात की, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। पहली बात तो ये है ना कि कोई भी जो हम बात कर रहे हैं, कहानी दिखाना चाहते हैं, उसको देखने वाला कौन है। मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि सुरेलिज्म हुआ या एक्सप्रेशनिज्म हुआ या एब्स्ट्रैक्ट हुआ, ये फाइन आर्ट की एक शक्ल होती है, पेंटिंग की। यहाँ सारी पेंटिंग्स लगी हैं, आप यहाँ खड़े करके किसी से पूछ लें कि इस पेंटिंग को ये कौन सी मीडियम में, तो वो उसका इंटेलेक्ट लेवल जाहिर करता है कि वो कितना समझता है। किसी फ्रेंच को ले आएंगे, हम फ्रेंच को वो बता देगा, तो आप फ्रेंच फिल्म को देखें, उसके ड्रामे को देखें, उसका वही लेवल होता है। तो जब आपके सोसाइटी में उसका इंटेलेक्ट लेवल नीचे गिर गया है, तो उसके लिए आप कितने जैक लगाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, उठाने की, ये पहला सवाल है। इस इंटेलेक्ट लेवल को कैसे रेस किया जाए? पहली बात तो ये कि इस बयानिए को, जैसे हमारे यहाँ स्टेट की बात की है उन्होंने, हमारे यहाँ पहले एक शख्स विलन है, कुछ दिन के बाद वो हीरो हो जाता है, पहले वो हीरो है फिर विलन हो जाता है, सारे बयानिए तब्दील होते रहते हैं, ठीक है ना। उसके लिए वो मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ का ये बयानिया, जिसको हम लोगों के लिए लेकर जाना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि यार ये ड्रामा चाहिए, ये बनाए, उसका हमें किसी सेट, किसी चैनल से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो कमर्शियल बुनियादों पर है। और मैं ये मानता हूं कि जो चीज नहीं बिकती है वो आर्ट नहीं है मेरी नजर में। अब उसको चैरिटी में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये इंटेलेक्ट लेवल रेज कैसे होगा? हमेशा चीजें जो है वो जिस मिट्टी पे खड़े होते हैं, जिसको हम आमतौर पे इंडिजिनस कहते हैं, स्टोरीज, वो वहीं से रेज होती हैं। आपका विट और आपका विजडम आपको खोदना पड़ेगा, मोहनजोदड़ो से लेकर मेरगढ़ तक, वहां से हड़प्पा तक, वहां से इन सारी मट्टियों को
आज नूर बैठी हैं, इन्होंने अपने घर को खोद के कहानियां निकाली तो आज नूर है। ठीक है, वहीं का सिंध का विट है, विजडम है, वहीं के कैरेक्टर्स हैं। पंजाब का है, आमना वहां से लाती हैं, इससे पहले वारिस को लेके जो अब नाम ले रहे हैं जहां से सड़कें बंद होती थी। तो किसी भी सोसाइटी का जो इंटेलेक्ट लेवल है लोगों का, वो उनके अपने इंडिजिनस जो विट है और विजडम है उससे उठता है। वो चैनल ऑनर का काम नहीं है, वो स्टेट का काम है, वो पीटीवी का काम है। स्टेट को विजडम नहीं चाहिए, स्टेट को आपका लोकल विट नहीं चाहिए, स्टेट को आपका एक कागजी बयानिया, कागजी कैरेक्टर चाहिए। आज स्टेट ने उस जगह पे लाके ड्रामे को खड़ा कर दिया जहां वो एक गली होती है। अब आप कहते हैं ना कि कहानी क्यों इस एक कुछ मौजूआत में, वो एक मौजू पर है, औरत भी एक है, आपने उसको खास तौर पे क्रिएट करके खड़ा कर दिया कि उसको थप्पड़ मारते हैं। अब जो आपका व्यूअर है वो चाहता है कि मैं उस कहानी का हिस्सा बनूं, मैं बाहर गली में निकलूं और मैं बोलूं हाँ तलाक दो, हाँ नहीं दो, हाँ थप्पड़ मारो, हाँ नहीं मारो। उस गली की लड़ाई में वो अपना हिस्सा मांगती है। आप उसको कोई ऐसा मौजू दें जिसमें उसका हिस्सा ना हो, वो उसको रिजेक्ट करती है। और अनप्रेडिक्टेबल कहानी को तो वो बिल्कुल नहीं मानती, वो ये चाहती है या ये चाहता है कि वो इसका हिस्सा बने। तो बेसिक की बात ये होती है ना कि जहां ये मौजूआत उठते हैं, आप फिल्म को देख लें, फिल्म को लाकर हमने तुमको डांस और इन चीजों में लाकर कर दिया ताकि फिल्म बाकायदा गुनाह के तौर पर पहचाना जाए और उससे हम अवेयरनेस का काम ना लें। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाएं तो इसको स्टेट के जरिए ही आप इंटेलेक्ट लेवल को उठा सकते हैं और अवेयरनेस की बात कर सकते हैं, आप मौजूआत की बात कर सकते हैं। ये बैठकर इसको चैरिटी वाले मौजू में लेना कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारी जरूरत है, ऐसा जरूरत तो है। पर एक बंदा जिसने दुकान खोली हुई है, वो अगर चाइना का माल लाके वो रखता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार अब तुम अपने लोकल मेड फैसलाबाद का क्यों नहीं रखते हो। अहमद साहब, आपका मुझे ख्याल आ रहा था कि ये सब बातें करें। इस आपका ख्याल इसलिए कह रही हूँ कि मैं भी उस दौर कुछ अरसे के लिए उस तजर्बे से गुजरी हूँ, और ये भी हम ये देख लें कैसी बातें, और ये भी गुजरा है, फसी भी जो मेरे साथ, और नूर आपा भी गुजरी हैं और जफर भी, कि हमने कंटेंट के ऊपर लाकर बिठाया गया। क्यों ये हम आज तक इस ताज्जुब है, वो अलग कहानी है कि भाई क्यों, हम क्यों, हमारा गुनाह था, वो हम सजा थी जो हमने कुछ किया। क्या ये जो बात कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल लेवल रेज करने की ज़रूरत है, जहन को जो वसत देने की ज़रूरत है सोसाइटी में, और हमें ये काम करना है, उसकी इजाज़त है? पहले यूँ होता था कि हमसे पूछा जाता था कि साहब आप क्या लिखना चाहते हैं। अब यूँ नहीं होता, अब वो कहते हैं कि हम ये लिखवाना चाहते हैं आपसे। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि याद रखिएगा कि यहाँ हम, ये बहुत ऐसा जुमला है जो आपको हर चैनल में सुनाई देगा, और वो है हम यहाँ फन की खिदमत के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम फन से कमाने के लिए आए हैं, इसलिए कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जो बिके नहीं। सही। जफर साहब जैसी अभी कहा ये, इन्होंने कहा नहीं बिकता तो वो आर्ट नहीं। अब इतने काबिल जो मेरे तजुर्बे हैं ज़ाती तौर पे, कि मुझे मेरे ख्याल में कोई 3 साल हो गए जब मैंने कहा कि मैं नहीं लिखूंगा, उसकी वजह यही थी कि कहा यह जाता था कि ये मौजूआत हैं, इनमें से लिख दीजिए। एक बात। दूसरे ये कि आपका जुमला खूबसूरत नहीं है मोहम्मद अहमद, और आपको लिखना भी नहीं आता। देखिए बात यह है कि अब तो जो कुछ बिकता है वो आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि क्या बिकता है, क्योंकि हम वो नहीं बेच सकते, इसीलिए आज हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, वरना हम बेच रहे होते इस वक्त। और आजकल तो बिकता है कि दाग तो अच्छे होते हैं। नहीं, वो आर्ट के ही नाम पे बिक रहा है, आप उसको बेच रहे हैं आर्ट के नाम पे,
उसको अलग किसी और नाम पे आप नहीं बेच रहे हैं कि मैं सर्फ बना रहा हूँ, साबुन बना, आप कहते हैं ड्रामा बना देखिए, रहा आर्ट के हूँ। नाम- जॉनरा का नाम चेंज नहीं किया आपने, नहीं, अब वो- उसका लेवल नीचे गिराया नहीं सर, आपने। बदल गया आर्ट का मैं नाम। आपको एक वो आपसे अब कहते हैं कि ये बिजनेस है, इट्स नॉट एन आर्ट। हाँ वो बोलते रहे हाँ। देखें वो मिर्च बेचते हैं, वो ईंटें पीस के बेचें या असल मिर्च बेचें, आप मिर्ची खरीदने जाते हैं, नाम उसने चेंज नहीं किया है, वो ड्रामा बेच रहा है, वो फिल्म बेच रहा है, ये नाम आर्ट के हैं, वो और अलग वो से जो कोई कहती चीज है नहीं ना बेच दाग रहा के है। पीछे का मसला ये है, नहीं, लेवल नहीं, गिरा है। अच्छा अहमद साहब, तो इसका मतलब ये है, जो बात मेरी समझ में आ रही है इस बहस से, mediocrity को इनकरेज किया जाता है। किसको? बेहद, एग्जैक्टली, किसको? बल्कि सिर्फ उसी को इनकरेज किया जाता आई है। एग्री। और डिस्करेज किया जाता है किसी भी इंटेलेक्चुअल सोच को या कहानी को जिसमें सवाल हो। जैसे ही आप उनको वन लाइन ही बताएंगी और उनको लगेगा कि इसमें तो कोई काम की बात हो रही है, तो वो उनके कान और आंखें गायब हो जाते हैं, तो उनको समझ ही नहीं यानी आती। एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन है हाँ एक इंटेलेक्चुअल जहन की। बात यूं है कि आपको बुलाया जाएगा, आप आमना है, जफर साहब है, अच्छे राइटर को बुलाया जरूर जाता है जी जी। और उनसे एक बात कर, कहानी भी ली जाती है, बास दफा उसी वक्त रिजेक्ट कर दी जाती है या एक हफ्ते के बाद रिजेक्ट कर दी जाती है, फिर आप उसको कोई 6 महीने के बाद स्क्रीन पे देखते हैं जो किसी और ने लिखा होगा। ठीक है, उस जगह हमें लीगल एडवाइस चाहिए ना जी कि बिल्कुल। उस सूरत में हम क्या करें, क्योंकि आपके पास अगर आप अपनी कहानी को फर्ज करें, आपने वो करवा लिया, क्या करते हैं कहानी को कॉपीराइट कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया, जी। मगर आपको स्क्रीन पर कहानी नजर आ रही है, किरदारों के नाम बदल दिए गए और ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस 2-4 बदल दी गई, तो आपसे क्यों नहीं लिखवाया गया था और किसी और से क्यों लिखवाया? क्योंकि हमारा जुमला खूबसूरत नहीं है, हमें लिखना नहीं आता। एक बात हुई। जी ये मैं मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं लिहाफ हूँ किसी और का, मुझे ओढ़ता कोई और है। बात ये है कि वो आइडिया मुझसे या अहमद साहब से या जफर भाई से या आप हम लोगों में से नहीं लिखवाया जाता। उसकी रीजन ये कि जब हम वो आइडिया लेके आते हैं तो वो हमारा ओरिजिनल आइडिया होता है। मसला है यहाँ पे एक अजीब सी भूख का मसला है। कहानी इतनी सादा नहीं है जितनी ख्वाजा साहब बता रहे, यहाँ बीच में इंटरमीडिएटरी है कंटेंट में। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी कंटेंट की जॉब हलाल करनी होती है, आप लोगों का सबका साबका रहा है मेरे अलावा, तो वो ये कहते हैं कहानी मेरी, कैरेक्टर मेरे, स्टोरी लाइन मेरी, फ्ला को तो मैंने जस्ट हायर किया है ये लिखने के लिए। अब कहानी होगी वो अहमद साहब की, कैरेक्टर वो एक आपका होगा, एक फसी का होगा, एक मेरा होगा, एक जफर साहब का होगा, वो सब उन्होंने हमारे वो स्क्रिप्ट या वो लाइंस जो उन्होंने कह दिए होंगे कि ये तो हमने बनाने ही नहीं, ये तो नहीं बिकेंगे, उन सब का वो एक मलहोबा बनाएंगे। और जाहिर सी बात है चूंकि उसके पीछे एक सोच नहीं है, उसके पीछे सिर्फ एक क्रेडिट लेने की और एक चोर की सोच है, तो जैसे एक शुतर गुरबगी होती है वो आपको नजर आती है। और मेरा ख्याल है कि हमारी जो फील्ड है, चूंकि वो आर्ट की फील्ड है और उसमें खुलूस असल चीज है जो कि नजर आना चाहिए, जब उस स्क्रिप्ट की बुनियाद में ही खुलूस नहीं होता और झूठ और चोर बाजारी होती है, तो फिर ये जो आज सूरत हाल, हालांकि मैं समझती हूँ कि पीटीवी के दौर में हम लोगों को तो शायद क्योंकि इतना सुर्खफीता था, पीटीवी को याद तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन जो जिनका साबका पड़ा हुआ है पीटीवी से, सुर्खफीते को टापने वाले लोग चंद होते थे। हम अपना टैलेंट लेके बैठे रह जाते। अगर आज पीटीवी का ही सिर्फ दौर होता तो ये प्राइवेट चैनल्स है, कोई सुर्खाब का पर नहीं था बिल्कुल, और ये प्राइवेट चैनल्स हैं जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं और हमें यहाँ तक बोलने का मौका दिया है और ये बात करने का मौका दिया है। तो ये जो सूरत हाल से अहमद साहब गुजर रहे हैं, ये सूरत हाल हम सब गुजरते हैं और उसके पीछे ये ड्रामा इंडस्ट्री नहीं, उसके पीछे हमारे मुआशरे की, जैसे कि इन्हतात का जिक्र किया है, उसके पीछे वो इन्हतात पजीर सोच और चोर हैं जो कि वो है नहीं मगर वो बनना चाहते हैं, क्योंकि कलम की रिवायत बहुत पुरानी है। ड्रामे को कंपनी गलत मिल गई, बिल्कुल जी, बड़ी गलत कंपनी मिली है। मैं एक फसी से एक बात करूंगी, क्योंकि फसी आप भी कंटेंट को हेड करते रहे एक सैटेलाइट चैनल के।
ابھی بات ہو رہی تھی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک معاشرے کی کوئی ذمہ داری ہے, ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے؟ جیسے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہوتی ہے جو دوائیں بناتی ہیں, ان کا یہ بزنس کا اصول ہوتا ہے کہ بھائی پروفٹ آئے یا نہ آئے, نقصان ہو جائے, ہم خام مال نہیں لگائیں گے, ہم گھٹیا مال نہیں لگائیں گے, کیونکہ ہم پر اس معاشرے کی ایک ذمہ داری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن وہ میڈیم ہے جس کے اوپر اس معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اچھا, مجھے پتہ نہیں کیوں یہ بڑی عجیب سی باتیں لگتی ہیں کہ ذمہ داری ہے یا کچھ ہے. مطلب میں اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا. میں سمجھتا ہوں کریشن جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ جانے دیں, آپ یہ نہ سوچیں کہ اس میں آپ نے کچھ نصیحت کرنی ہے, آپ نے اس میں کچھ معاشرے کو سنوارنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے. اچھا, دوسری ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز اون کرنا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں میں بہت بولا اسی اس پہ, مجھے ہر جگہ بلاتے بھی رہے, میں بہت بولتا رہا, بہت بڑھ کی میں نے. لیکن اب پتہ میں نے ریئلائز کیا ہے کہ جو ڈرامہ بھی مطلب دیکھا جا رہا ہے نا, مطلب وہ دیکھا جا رہا ہے اس کی وہ ہے. مجھے وہ ڈرامہ اس لیے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں جس طرح کا ڈرامہ چاہتا تھا وہ ڈرامہ نہیں ہو رہا. جو میں نے ڈرامہ دیکھا تھا, اسی بات ہے, میں ایک انڈیویجول کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں مجھے اون کر لینا چاہیے کہ جو مجھے ڈرامہ پسند ہے وہ ڈرامہ نہیں ہو رہا. جو آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ظاہر سی بات ہے, ایک ہمارا پویزا ہے, ہم لوگ جس طرح کا کام کرتے ہیں وہ ڈرامہ نہیں ہو رہا. لیکن چلے دوسرا جو ہو رہا ہے, ظاہر سی بات ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں جو بھی وہ ہو رہا ہے, اور وہ اچھا ہے برا ہے میں اس کی بحث میں نہیں پڑ رہا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو جا کے وہ ہے نا ڈرامے کی جو ہماری صورتحال جو بگڑی ہے یا کچھ ہوئی ہے, مطلب اس میں سارا جو ہاتھ ہے نا وہ ہمارا اپنا ہی ہے, ہمارا اپنا ہی ہے. ہمارے مطلب اپنے رائٹرز کا, ہمارے رائٹرز کا یہ قصور ہے. ہم یہ کیوں کہیں گے جو اب جو رائٹرز آئے انہوں نے جا کے صورتحال بہت خراب کی, جو ہم سے پہلے جو رائٹرز تھے انہوں نے بھی یہی کیا ہے. نورافا, آپ کی طرف آتے ہیں, جو اتنی ہمارا جو جلے ہوئے دل ہیں جن میں سے یہ دھواں اور آنچ اٹھ رہی ہے, اس سے جو ایک کنکلوژن نکل رہا ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں, اس سے یہ بہرحال ایک متفق ہیں سب اس بات پر کہ معیار بگڑا ہے, یا یوں کہیے بدلا ہے, اور اس کی شکل بدلی ہے. چلیے ہو گیا, یہ مان لیتے ہیں کہ بگڑ گیا, یا مان لیتے ہیں کہ بدل گیا. جی, تو کیا کیا جائے اب؟ ہم جو اتنے سب بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, اگر ہم بہت ریاست کی ذمہ داری ہے, چینل کی ذمہ داری ہے, ایک رائٹر کی بحیثیت ایک لکھنے والے کی, ہم کیا کریں کہ ہم قلم روکیں بھی نہیں اور ہمارا قلم جھکے بھی نہیں؟ میں ہمیشہ ایک بات لکھنے کے حوالے سے, آرٹ کے حوالے سے کہا کرتی ہوں کہ تخلیق جو ہے, کریٹیوٹی جو ہے, یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک گلیشیئر ہے جہاں سے وہ میلٹ ہوتا ہے اور وہاں سے اس کا بہاؤ شروع ہوتا ہے, اور ندی نالوں اور پھر دریا سے ہوتے ہوئے وہ سمندر میں جا گرتا ہے. یہ بہاؤ جب تک کریٹیوٹی میں ہے تب تک وہ ہر زمانے میں کھڑی رہتی ہے. جہاں جہاں یہ بہاؤ رکتا ہے وہاں وہاں پرابلم آتی ہے. بہاؤ کریٹیوٹی کا کون روکتا ہے؟ زمانہ جو بدل رہا ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی روکے گا. ہمیں زمانے کے مطابق چلنا پڑتا ہے. جیسے ایک چیز اس ٹیکنیک میں, ڈرامہ میں ایک چیز ایسی آ گئی ہے جو پی ٹی وی کے, میں نے پی ٹی وی کا ڈرامہ لکھا, پی ٹی وی سے نام کمایا. پی ٹی وی پر میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی میرا اگر نام ہے تو بہت سے لوگ, بہت سے بچے بھی اس ڈرامے کا نام لیتے ہیں جو اس کے بعد وہ پیدا ہوئے ہیں. میں بڑی حیران بھی ہوتی ہوں. لیکن دیکھیے, پی ٹی وی کا جو ڈرامہ تھا اس میں ایک چیز قطعی نہیں تھی, وہ سوال کبھی آیا ہی نہیں. ہم نے جب لکھا, ہم سے پہلے والوں نے لکھا, وہاں ایک سوال کبھی کیا ہی نہیں گیا. ہاں, ہمارے الفاظ ضرور درست کیے گئے اور بڑے دبنگ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ میں. وہ تھا پیس. ہمیں کبھی نہیں کہا گیا کہ اس کا پیس سلو ہے, ہم نے لفظ سنا ہی نہیں. جی, کبھی نہیں کہا گیا کہ ڈریگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پوری ایپیسوڈ میں مزے سے بیٹھ کر جہاں سے شروع کیا جہاں ختم کیا کر دیا, لوگوں نے وہ دیکھ لیا, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم آ گیا ہے وہ ہے پیس کا. آپ خود آبزرو کر لیں کہ اگر آپ پرانی فلم دیکھ لیں تو آپ کا خود دل چاہے گا کہ بات ذرا آگے بڑھ جائے, ذرا جلدی کر دو, ذرا ایڈٹ کر دو بھائی, اب ذرا تھوڑا سا بات گفتگو شروع کر دو اور ذرا منظر آگے بڑھنا چاہیے.
क्यों ऐसा होता है, हम भी ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम भी इस जमाने के साथ चल रहे हैं, हमारा दिमाग भी अब फास्ट पेस का आदी हो चुका है, हमें वो चाहिए। एक सबसे बड़ी गड़बड़ ये आ गई है, अब पेस को फास्ट कैसे किया जाए, उसमें हमारे बहुत से लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हो गए हैं कि वायलेंस होगा, तशद्दुद होगा तो पेस फास्ट होगा, जबकि ऐसा नहीं है। पेस फास्ट होगा, आप कहानी को, मंजर को शुरू करें, खत्म करें, आगे बढ़ें और उसको उसी तरह से कनेक्ट करते चलें। हम डाल देते हैं थप्पड़, हम डाल देते हैं औरत लड़की का पिटना, हम डाल देते हैं चीखो पुकार, हमारा ख्याल होता है कि उससे पेस फास्ट हो रहा है, लाउड करते हैं, होता है उससे पेस फास्ट, मगर रुख गलत संत पर चला जाता है। ये चीज है। आमना एक बात कह रही थी, वो बात बार बार बीच में जरा टूट रही थी। एक बात मैं जरूर आपको बताऊं कि रियासत, जफर ने बिल्कुल ठीक कहा, रियासत ने हमेशा सोच पर पहरा बिठाया है। हम जो ये समझते हैं कि पीटीवी ने हमें बहुत ज्यादा सहूलियात दी, तो ऐसा नहीं है। पीटीवी ने उन चीजों को जरूर सहूलियात दी जिन्होंने आमना और सदक ना कहा, लेकिन जिन्होंने इख्तिलाफ किया उनको, उनके आगे रुकावटें आई। मैंने एक एक जुमले पर एमडी पीटीवी को बैठकर जवाब दिया है कि जुमला क्यों है, इसका मतलब क्या है, उस वक्त के सियासी हालात के हवाले से। ऐसा नहीं है, सियासत हमेशा सोच को में रुकावट पैदा करती है। इस वक्त जो ये आया है, प्राइवेट सेक्टर जो आया है, इसने जो ड्रामा दिया है, इसको आना ही था। ये वो जो आमना वाली बात है कि पीटीवी ना करता, नहीं, वक्त बदल गया है ना, इसको आना ही था। ये पीटीवी को भी ऐसा करना पड़ जाता, ये होना ही था। अब हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, हम यस कोई भी, फसी ठीक कह रहे हैं, कोई भी राइटर, क्योंकि वो पहले तख्लीक के अमल से गुजरता है, वो कोई मुबल्लग नहीं है, वो मुआशरे को सुधारने की नीयत से कतई जब हम पेन उठाकर बैठते हैं तो हम मुआशरे के हमदर्द नहीं होते हैं, हम उसे खोदना शुरू करते हैं, हम मसाइल को, बातों को, तजुर्बात को निकालते हैं, सामने ले आते हैं। लेकिन जो चीज प्रॉब्लम कर रही है कि जिम्मेदारी चैनल की होनी चाहिए, किस, ऐसा कुछ नहीं है। असल चीज सिर्फ ये है कि हम थोड़ा सा हमें ईमानदाराना रवैया रखना पड़ेगा सबको, कि यही देखें, जैसे मंटो ने कहा है, मुआशरे ने जो दिया है वही लौटा रहा हूं मैं, जैसा मुआशरा है वैसा ही राइटर उसको लौटा रहा है। लेकिन उसमें थोड़ा सा एक ईमानदाराना रवैया ये होगा कि क्या मैं तबाही की तरफ तो नहीं जा रहा। मसलन मैं राइटर को, मेरे सामने राइटर आता है तो मैं उसे ये कहती हूँ कि बेटा आपने थप्पड़ डाल दिया, मुझे इससे इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि औरत थप्पड़ खाती है, मगर इसी थप्पड़ के रिएक्शन में औरत को दिखा दो कि उसने वो हाथ भी पकड़ लिया है। थोड़ी सी ईमानदारी है जो आप उसमें डाल कर आगे बढ़ें। ये एक्चुअली है, प्रॉब्लम ये भी है कि एक पानी का जो बहाव है, पानी इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। ये और बात है, आमना बैठी हैं कि पानी खुश्क हो चुका है इस मुल्क की ज़मीन का, और जहन भी ज़ाहिर खुश्क हो चुके हैं, लेकिन तख्लीकी बहाव जो है ना, वो उसमें बेतरतीबी आ गई है, उसको समेटने की ज़रूरत है। अच्छा है, सब अच्छा लिख रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें आई हैं इस ज़माने में, और मैं समझती हूँ आने वाले ज़माने में और ज़्यादा आएंगी, और ज़्यादा खुला हुआ ड्रामा होगा। चैनल्स को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को मिलके ज़रा इसको समेटने की ज़रूरत है।